So we were discussing dynamic memory allocation, and we have seen how it is done using functions which were available in C language. हमने dynamic memory management C language के हिसाब से सीखा, and we looked at functions like alloc, malloc, realloc, and free. Now the time has come that we should learn how dynamic memory management is done in the C++ language. So let us start with a brief recap. We discussed that there are several types of memory like static memory, heap memory, and stack memory. You can see the diagram here. This is something that we are repeating again. Static memory is used for global and static variables. Heap memory is the memory that we'll be using for dynamic memory management. This area of memory will be used by malloc, alloc, realloc, and as well as the operators which are available in C++. So our main aim is we'll be focusing only over heap memory management. Stack memory, we have already discussed. This is the memory that is used by the compiler, by the system automatically. Whenever you whenever you call a function generally has some locally created variables. Those variables get of space in this stack memory. And once the job of function gets over, the stack memory gets deleted. So these are the things that we have already discussed. को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. Now let us look here. Just concentrate on the second point, dynamic data. Explicitly allocated, deallocated during program execution by C++ instructions written by the programmer using operators new and delete. So this is something new. इसका नाम भी न्यू है और ये वैसे भी नया है क्योंकि डायनेमिक डेटा मैनेजमेंट, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट we learned using calloc malloc. That was the facility available in C language. Now in C++ language we have operators. We'll be using operators instead of functions. So first difference to note here is calloc was a function, malloc was a function, but new is not a function, delete is not a function. You can see parentheses are not written here. Parentheses nahi hai, matlab round brackets nahi hai. So new and delete are what? They are operators, they are not functions. So we'll be learning how this new works and how this delete operator works. चलो देखते हैं आगे. So again a diagram. This diagram is again self-explanatory. If you pay attention here, we'll be focusing over runtime allocated memory. And whenever we talk about runtime we'll be learning heap. How we allocate memory in heap. Heap is the area of memory which is allocated to program when your program comes into execution. मतलब runtime पे allocate होता है. और ये जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं स्टैटिक डेटा और प्रोग्राम कोड और ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, ये कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन के काम आते हैं. मतलब जब प्रोग्राम अभी रन फेज में नहीं आया होता. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. ये सब आप देख चुके हैं. malloc calloc हमने पढ़ लिया है. सी पहली बुलेट जो है कहती है सी फंक्शन malloc calloc वर यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट. C++ uses new and delete. Now let us look at new. New is an operator. It is used to allocate memory during execution time, means runtime, means dynamic memory management. So what new does is it returns a pointer to the address where object is stored. Always returns a pointer to the type that follows new. अब देखो C वाला जो calloc malloc था वो क्या रिटर्न करता था? Can anybody tell me what was the return type for malloc and calloc? We discussed malloc functions which were available in C, and we explicitly discussed one topic. I made this thing clear that calloc returns a generic pointer, void pointer. Void pointer, sir. Fine. And we always need to do typecasting. If you wish to allocate memory for an integer, then that generic pointer should be typecasted into int star. And if you are creating memory to store float values, then your generic pointer needs to be properly typecasted into float star. तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था ना calloc malloc में, याद करो. आप जब भी malloc लिखते हो उसके बगल में लिख देते थे ब्रैकेट्स के अंदर int स्टार, float स्टार, कभी char स्टार. वो सब कुछ यहाँ पे नहीं करना है. न्यू ऑपरेटर इतना बढ़िया ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, आपके लिए मेन मेमोरी में जगह रिजर्व करेगा. जहां पे वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपको मिला है
उसका स्टार्टिंग एड्रेस आपको लाके एक पॉइंटर में दे देगा, और उस पॉइंटर को आपको टाइपकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जैसा डाटा है वैसा खुद को बना लेता है। मतलब न्यू को कोई टाइपकास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये अभी आप कोड में भी देखेंगे। लेट अस मूव अहेड। New, basically you will be learning new in two forms. First form says whenever you want to create memory for a single variable, एक सिंगल इंटीजर के लिए जगह बनानी हो तो क्या लिखते हैं, न्यू इंट, न्यू एंड डेटा टाइप। मैंने क्या बोला, जब इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करनी हो तो क्या लिखेंगे, न्यू, एंड वी विल राइट इंट, डेटा टाइप की जगह क्या आ जाएगा, इंट, और सेमीकोलन लग जाएगा, न्यू इंट सेमीकोलन। और जब एरे बनाना हो तो न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स 5, मतलब आपको 5 इंटीजर्स के लिए जगह बनानी हो तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे न्यू, लिखेंगे डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये सब पढ़ने से पहले आपको कोड दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लुक एट दिस लाइन, न्यू कैर, मतलब एक कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है रन टाइम पे, तो हमने क्या लिखा, न्यू कैर। न्यू के आगे क्या आ गया, डेटा टाइप। ठीक है, आपको एरे का भी दिखाते हैं मिले जाके। यहाँ देखिए लाइन, न्यू कैर ऑफ 5। So what we are doing here is we are asking compiler to reserve memory for 5 character values। हमने कंपाइलर को क्या बोला, 5 कमरे जिसमें कि मुझे कैरेक्टर को रखना है वो बना दो, डायनेमिकली बना दो, और बना के उसका पता मुझे किस में दे दो, पीटीआर में। अब यहाँ देखो कहीं राउंड ब्रैकेट में कैर स्टार लिख के टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है क्या, हमें यहाँ पे कहीं पे भी न्यू से पहले कैर स्टार टाइप कास्टिंग नहीं करनी है। जो पता हमें मिलेगा वो डायरेक्टली हम अपने कैरेक्टर पॉइंटर को दे देंगे। हाँ, सिंस यू वुड लाइक टू स्टोर कैरेक्टर्स हियर इन दिस मेमोरी, so this pointer should be proper, means it should be of same data type, it should be a character pointer because you wish to store characters, but you don't need to do any typecasting here। जिन्होंने कैलॉग वेलॉग का लेसन सेशन अच्छे से सुना था उनको जरूर याद होगा कि कैलॉग के बगल में या राउंड ब्रैकेट में टाइप कास्टिंग आती थी, मगर यहाँ नहीं आती है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव बैक, यहाँ से आए थे वहीं चलते हैं। सर इसमें हम जेनरिक पॉइंटर कर सकते हैं न्यू के आगे अगर हम वर्ड लिख दें सर। न्यू क्या के वर्ड लिख दे मतलब, सर जेनरिक पॉइंटर्स के लिए अगर हम इसको यूज करना चाहें। आप अपने जेनरिक पॉइंटर तो किसी का भी एड्रेस ले लेगा। आपने जो कैर स्टार अभी देखा था स्क्रीन पे, उसकी जगह आप एक जेनरिक हाँ पॉइंटर बना लीजिए, हाँ तो आप सर, कर मैं वही सकते हैं। पूछ रहा था हाँ सर। हाँ कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उसकी उसको किसी काम आएगा नहीं आपके, है ना। जब आपको स्पेसिफिक डेटा पता ही है तो वाई क्रिएट अ जेनरिक पॉइंटर, मगर जरूरत है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर। चलिए, नाउ न्यू हैज टू टाइप्स, वी राइट न्यू एंड वी राइट द नेम ऑफ डेटा टाइप। तो क्या होगा, एक वैल्यू बनेगी, एक वेरिएबल के लिए जगह बनेगी। इफ यू राइट न्यू एंड यू राइट इंट एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू राइट 10, तो इंट कितने, 10, 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। फाइन, तो पढ़ लेते हैं पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। इफ मेमोरी इज अवेलेबल, नाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, whenever you try to allocate memory, जब भी मेमोरी के लिए whenever you place a request, भाई रिक्वेस्ट ही तो है, आप क्या कह रहे हैं, आपको 10 कमरे चाहिए, मगर डोंट यू थिंक कि मेमोरी में अगर जगह नहीं हुई तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है मेमोरी में जगह ही ना हो, है ना। तो वी नीड टू चेक दिस थिंग। इफ मेमोरी इज अवेलेबल इन एन एरिया कॉल्ड हीप, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कौन सा मेमोरी एरिया यूज होता है, हीप, हमेशा याद रखेंगे। इफ मेमोरी इज अवेलेबल इन एन एरिया कॉल्ड हीप, न्यू एलोकेट्स द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो आपने न्यू को जितनी मेमोरी मांगी है वो उसके लिए मेमोरी को एलोकेट कर देगा, एंड इट रिटर्न्स अ पॉइंटर, ठीक है, टू द मेमोरी एलोकेटेड। जहां पे मेमोरी एलोकेट हुई है वहां का पता आपको लाके दे देगा पॉइंटर में, आप उसे रिसीव कर लीजिए। वंस यू गेट एड्रेस इन अ पॉइंटर, यूजिंग दैट पॉइंटर यू कैन मूव टू दैट लोकेशन एंड you can manipulate the values available there. You can perform reading activity, you can perform searching, whatever you feel like। पॉइंटर से जब उस मेमोरी पे पहुंच गए, उस मेमोरी में तो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को क्या करना है, कैसे यूज करना है, यू कैन प्ले विथ योर पॉइंटर एंड यू कैन डू द मैनिपुलेशन। इट कैन बी mere display of data, it can be searching operation or some manipulations and calculations, anything you can do। so this is the job of new। new क्या करता है, हीप से मेमोरी को उठाएगा, आपको दे देगा, ठीक है। अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट्स विथ एरर मैसेज, ये कब होगा,
जब हीप में जगह ही ना हो। भाई आपको बताया है इनफाइनाइट तो कुछ नहीं है ना, सिस्टम भी फाइनाइट है। इवन इफ यू आर यूजिंग i7 कंप्यूटर विथ 8 GB रैम, ठीक है, तब भी फाइनाइट ही है ना। 8 GB समथिंग दैट इज फाइनाइट, यू कैन नॉट से कि आई हैव इनफाइनाइट मेमोरी अवेलेबल। तो हर चीज फाइनाइट है, मतलब एक ऐसा समय आ सकता है जब आपके पास मेमोरी बचे ही नहीं। तो जब आपके पास मेमोरी नहीं होगी, आप न्यू से मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा? सॉरी, इनसफिशिएंट स्पेस अवेलेबल, है ना, एरर आ जाएगा। The dynamically allocated object exists until delete operator destroys it. This is something very important. Please recall this thing. It was available in C also. ये point का जो meaning है ये C में भी पढ़ा था आपने. Whenever you create memory in heap area, whenever you create space in heap area, it is your responsibility to free up that space. And this we were doing using free function in C language. But here in C++, when you allocate memory using new, you release that memory using delete. new से बनाएंगे, delete से हटाएंगे। new से जो memory बना दी और delete को कॉल नहीं किया तो वो memory क्या होगा? allocated status पे चलेगी, मतलब कोई और प्रोसेस उस जगह पे अपने डेटा को नहीं रख पाएगी। और आपने अगर ये हैबिट डेवलप कर लिया कि आप डायनेमिक मेमोरी बनाने के लिए बार बार न्यू कॉल करेंगे मगर डिलीट आप कभी भी कॉल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? एक समय आएगा जब आपकी सारी मेमोरी का स्टेटस क्या होगा? एलोकेटेड। और जब नई प्रोसेस आएगी और वो कुछ नया न्यू से बनाने की कोशिश करेगी तो उसको क्या पता चलेगा? इनसफिशिएंट स्पेस अवेलेबल, आपकी ये मेमोरी नहीं बची है। जबकि हकीकत क्या है? न्यू से जो स्पेस बनाई थी अब वो यूज में नहीं आ रही है मगर डिलीट नहीं किया ना आपने उसको, तो उसका स्टेटस अभी भी क्या दिख रहा है? ऑक्यूपाइड। तो ये ऑक्यूपाइड स्टेटस तभी हटेगा जब आप डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरी को डिलीट से डिस्ट्रॉय करें। मतलब न्यू है तो अगली चीज क्या आ जाएगी? अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं, डिलीट आ जाए। ठीक है, इस डिलीट पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले ये कोड क्या कह रहा है उसको समझें। तो let us focus, let us concentrate here on this code. You just keep watching the arrow marker, red color arrow. It says that if you declare char star ptr, what will happen? Pointer will be created in the main memory. भाई पॉइंटर है तो पॉइंटर को अपने अंदर क्या रखना होता है? एड्रेस। मतलब पॉइंटर भी एक कंटेनर होता है ना, ठीक है, वो वैल्यू नहीं रखता है मगर अपने अंदर जो चीज रखता है एड्रेस, तो उस एड्रेस को रखने के लिए भी तो एक कंटेनर चाहिए। कुछ भी दुनिया में रखना हो तो यू नीड अ कंटेनर। अगर आपको पानी चाहिए यू नीड अ ग्लास, है ना। आपको कपड़े रखने हैं यू नीड सम सूटकेस और सम बैग। तो दुनिया में कुछ भी रखने के लिए वी नीड अ कंटेनर। So when you execute this first statement char star ptr, what will happen? You can see a sky blue color, light sky blue colored box will be created and it will be labeled as ptr by the compiler. Now when compiler moves to this statement, the second one, what does this statement say? It says new, please allocate space for one character variable. क्या बोला? एक सिंगल कैरेक्टर के लिए जगह बना दो। तो ये देखो डार्क ब्लू कलर में एक जगह बनी, उस जगह का कुछ पता था, न्यू ने जगह को एलोकेट किया और उसका जो एड्रेस था वो किसको लाके दे दिया? पीटीआर में। मतलब ये 5000 किस में आ गया? पीटीआर में। अब मेरा पीटीआर इस मेमोरी को पॉइंट करने लग जाएगा। माई पीटीआर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द मेमोरी दैट न्यू हैज एलोकेटेड। न्यू ने एक कमरा बुक किया है जिसमें करेक्टर रखना चाहता है। उस कमरे का पता 5000 है, एज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कुछ, आपके कंप्यूटर पे कुछ भी हो सकता है। तो पीटीआर में क्या आ गया? 5000। नाउ मूविंग फर्दर व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, ये क्या कहता है? पीटीआर में जो एड्रेस है उस पते पे जाओ, स्टार लगा हुआ है ना, पीटीआर के अंदर क्या है? एड्रेस 5000। कह रहा है उस 5000 पे जाओ और वहां क्या रख दो? बी रख दो। तो देखो रेड कलर में बी आ गया अंदर। अब आप सी आउट चलाएंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा? बी। जॉब ऑफ सी आउट इज टू डिस्प्ले थिंग्स ऑन द स्क्रीन। तो इफ यू सी आउट, देखो यहाँ पे सवाल ये कि कोई बच्चा ये कह सकता है सर व्हाट विल हैपन इफ आई राइट सी आउट पीटीआर? इफ यू राइट सी आउट पीटीआर तो स्क्रीन पे 5000 आ जाएगा।
क्योंकि पीटीआर में क्या पड़ा है वो दिखाओगे। पीटीआर में क्या है देखो डायग्राम में 5000। आप 5000 दिखाना चाहते हो या 5000 पे मौजूद वैल्यू दिखाना चाहते हो? अगर आप कहते हो सर मुझे 5000 पे मौजूद वैल्यू दिखानी है, तो आपको पीटीआर के सिर पे क्या लगाना होगा? स्टार। क्योंकि इस ऑपरेटर का क्या नाम होता है? वैल्यू एट द एड्रेस। पीटीआर हैज एन एड्रेस and it will take you to that value at the address stored in ptr। तो आपको बी दिख जाएगा स्क्रीन पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं। am I audible student still? Varun is saying my voice is not coming। सही सर आवाज आप ऑडिबल हो। ये वरुण आपके बेटा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, यू नीड टू रीप्लग, rejoin or replug please। let us say that I am audible। okay चलिए। सर एक डाउट था। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, डाउट बहुत अच्छा लगता है। सर अगर ये कैरेक्टर के आगे हम एरे वाला डाल देते हैं तो फिर एरे का पूरा जो एड्रेस था वो पीटीआर में स्टोर हो जाता है। एरे का पहला कमरा, उसके पहले कमरे का पता, वो पीटीआर में आ जाता है। अभी देखेंगे उसको, अभी आने वाले हैं उसे। जो एरे बनाओगे बेटा उसमें 5 कमरे होंगे अगर, तो पहले कमरे का पता क्या होगा? 5000। और एरे कैरेक्टर्स का बनाया है, मतलब अगला कमरा 5001, फिर 5002, फिर 5003, फिर 5004, फिर 5005। तो जो पहला एड्रेस है फर्स्ट रूम 5000, इफ इट इज 5000 एक्चुअली, तो 5000 उसमें आ जाएगा पीटीआर। फिर पीटीआर को प्लस प्लस करते रहना, अगले अगले कमरे पे जाते रहना। राइट, ठीक है, थैंक यू। चलो। Operator delete syntax। So when we have new we have delete। New does the job of allocation and delete does the job of deallocation। And please do remember to call delete whenever you call new, please do call delete also। Why so? I have mentioned number of times। new से जो बनाया अगर delete से नहीं मिटाया तो allocated रहेगा। और एक प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, अ वेरी favorite question of all interviewers is please explain what are memory leaks। memory leak, LEAK, लीक यानी पानी लीक होता है ना टैंक से, वो वाला लीक। तो अक्सर पूछा जाता है मेमोरी लीक क्या होता है? मेमोरी लीक प्रोग्रामर के द्वारा की गई एक गलती है। गलती क्या है? न्यू से मेमोरी बनाता तो है मगर डिलीट को सही समय पे सही तरीके से कॉल करना भूल जाता है। तो क्या होता है? मेमोरी धीरे 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 लीक होती रहेगी, मतलब अब आपके काम की नहीं रहेगी ना। तो इफ मेमोरी गेट्स लीक देन वी आर इन ट्रबल, आवर प्रोग्राम विल नॉट वर्क। सो डिलीट क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट एरे करंटली पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर इज डीएलोकेटेड। मैंने देखो लास्ट क्लास में भी बताया था, फ्री के अंदर राउंड ब्रैकेट में सी में क्या लिखते थे? फ्री फंक्शन में, सी प्रोग्रामिंग में फ्री फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में लिखते थे पॉइंटर का नाम। तो डिलीट में भी पॉइंटर का नाम लिखना है। आप देखो अगर आपने एक न्यू से मेमोरी बनाई तो उसका पता किसको मालूम है? पॉइंटर को। अगर मैं वो पॉइंटर डिलीट कर दूं तो क्या आप वो मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगे? इफ आई डिलीट द पॉइंटर you will not be in a position to access that memory location because it was ultimately the pointer who knew the address and we have deleted the pointer। ठीक है, तो फिजिकली कभी भी रैम में किसी भी मेमोरी में फिजिकली जाके एक एक सेल को मिटाते नहीं है। हाँ, लिखने के लिए तो एक एक सेल में जाना पड़ता है। whenever you copy data onto any type of memory, चाहे वो CD हो, वो आपका रैम हो, वो हार्ड डिस्क हो, वो पेन ड्राइव हो, लिखते समय तो हर एक बॉक्स के अंदर वैल्यू को लिखना पड़ता है। हेड होता है, हार्ड डिस्क में ना एक हेड होता है, मैग्नेटिक डिस्क है उसमें एक हेड लगा होता है जो हर जगह पे मैग्नेटाइजेशन स्कीम को यूज करके 1010 के फॉर्म में डाटा लिखता है। मैं क्या कह रहा हूँ? लिखते समय whenever you write, you are writing something, you need to physically move to each and every location। but when it comes to erasing data, तो डाटा को इरेज करना है तो क्या करना है? पॉइंटर डिलीट कर दो, बस। पॉइंटर चला गया, डाटा मौजूद है भी तो भी मैं उसको यूज नहीं कर सकता।
मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है ना? समझ में आ रहा है ना डिलीट पॉइंटर क्यों लिखते हैं? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी न्यू से बनाया हुआ एरे, न्यू से देखो एरे भी बनता है, पीछे स्लाइड पे देखा था आपने, आपको फिर से दिखाता हूँ, एक सेकंड देखो, न्यू से अगर एरे बनाया है तो डिलीट कौन सा वाला कॉल करेंगे? ये जो सेकंड डिलीट है। एरे को डिलीट करने के लिए ये डिलीट मत कॉल करना, ये एक मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा, कंपाइलर डिपेंडेंट है। कुछ कंपाइलर क्या करेंगे, अगर एरे को फर्स्ट वर्जन से डिलीट करोगे तो वो आपके पहले सेल को तो डीएलोकेट कर देंगे, बाकी सेल का क्या होगा, वो बाकी मेमोरी डीएलोकेट नहीं मानी जाएगी। बड़ा अटपटा सा बिहेवियर दिखाते हैं वो। तो ये चीज बस थोड़ी सी याद रखनी है कि जब भी आपको एरे डिलीट करना है तो आप फर्स्ट वर्जन यूज नहीं करेंगे। डिलीट का एक स्पेशल वर्जन बना हुआ है जिसके अंदर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है, आप डिलीट विद दिस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करें और फिर पॉइंटर का नाम लिखेंगे, मेमोरी डिलीट हो जाएगी। तो गुड आइडिया टू सेट पॉइंटर टू द रिलीज मेमोरी टू नल, पॉइंटर को नल कर दो, खत्म काम। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड विद डिलीट टू डीएलोकेट डायनामिकली एलोकेटेड एरे। फाइन। सर मुझे एक चीज जाननी है सर। जी। सर जब आप कह रहे हो कि जब हम डिलीट करते हैं तो वो पॉइंटर को भुला देता है, हम्म लेकिन वो हमारे मेमोरी में अभी भी वो चीज पड़ी तो है लेकिन। हम्म, बिल्कुल पड़ी है। तो सर उसको हटाना है ना हमको, तो हमें उससे क्या फायदा कि अगर हमारे घर में कोई सामान पड़ा और हम भूल गए कहाँ रखा है, लेकिन वो स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है अभी भी। देखो बहुत अच्छी चीज पूछी। अभी जो रैम होती है या जो हार्ड डिस्क होती है या जो पेन ड्राइव होती है, आपकी पेन ड्राइव में एक मूवी है, ठीक है? हाँ मैंने क्या जी। किया, डिलीट कमांड चलाई तो मैं क्या कह रहा हूँ, उस मूवी का पॉइंटर टेबल डिलीट होगा, मूवी वहीं रहेगी। मैंने यही चीज हाँ बोली, जी। ठीक है? हाँ जी सर। अब सुनो, डिलीट चल चुका है, पॉइंटर टेबल डिलीट हो गया है, मूवी वहीं की वहीं है। अब एक नया स्टूडेंट आता हम्म। है, कहता है सर मेरी वाली मूवी अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लीजिए। जब मैं कॉपी करने के लिए जाऊंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखेगा कि क्या कोई पॉइंटर टेबल ऐसी एंट्री है जो इस कमरे को पॉइंट कर रही है जहां सामान रखना है। ऐसी कोई पॉइंटर एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसका क्या हम्म। मतलब है कि ये जो कमरा है, ये कमरा किसी के द्वारा पॉइंट नहीं किया जा रहा है, का मतलब ये फ्री है, मैं इसे ओवरराइट हाँ कर जी। सकता हूँ। तो क्या ओके। करेगा, नई मूवी का डाटा उसकी खोपड़ी पे रख देगा। ओके। अगर उसने रख दिया तो मूवी चली जाएगी बेटा, ये तो पक्की बात है। मगर आपने हम्म। कुछ कॉपी नहीं किया है उस जगह पे, पेन ड्राइव में हाँ जिस जी। जगह पे कुछ कॉपी नहीं किया, ओवरराइट नहीं हुआ, तो आपकी मूवी तो वही है। मूवी कहाँ गई, बस आप प्ले नहीं कर सकते क्योंकि कहाँ पड़ी है वो आपको मालूम नहीं। ओके। अब देखो होता क्या है, घर के सामान में और रैम में और मेन मेमोरी में और हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक के ऊपर एक सामान का चढ़ा देना, यानी जैसे ही पेन हम्म। ड्राइव में लोकेशन पे सामान ओवरराइट करते हो तो पिछला अपने आप गायब हो जाता है। मगर घर में ओके ऐसा सर। नहीं होता ना कि मेरे पास एक सोफा पड़ा है, मैं एक और ला दूंगा तो पिछला सोफा गायब हो जाएगा। ओके सर वो भगवान समझ जी गया वाला सर। चमत्कार नहीं हो पाता है, मगर मेमोरी में हो जाता है चमत्कार, है ना? ओके सर। Because memory, everything that is stored in memory is in the form of zeros and ones. What we are हम्म। doing is we are either converting 1 to 0 or 0 to 1। ये तो हो रहा है। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। Let us look at this slide how delete works। तो कैर स्टार पीटीआर बनाया था तो 5000 पॉइंटर बना था, फिर न्यू से कैर बनाया तो ब्लू बॉक्स बन गया। स्टार पीटीआर में बी डाला तो ऐसे आप देखिए बी भी आ गया। सी आउट कर देंगे, चीजें सी आउट होंगी, मगर जैसे ही डिलीट चला तो देखो क्या होता है, पॉइंटर, उसके बाद अब ये डिलीट चलेगा। डिलीट ने क्या किया, पॉइंटर डिलीट कर दिया। मतलब पॉइंटर जो 5000 मेमोरी पता लेके बैठा था, इस ऊपर वाले बॉक्स में देखना 5000 गायब हो जाएगा। गायब हो गया, दैट डज नॉट मीन कि नीला वाला बॉक्स अब मेन मेमोरी में है नहीं। दिस डार्क ब्लू कलर्ड बॉक्स विथ वैल्यू बी एंड एड्रेस 5000 still exists in the main memory until and unless it is overwritten, but problem is we have lost the address। अब वो 5000 था कि 6000 था कि 2000 था, आई डोंट नो। तो ये होता है डिलीट पीटीआर से, पॉइंटर की मेमोरी चली जाती है और पॉइंटर के अंदर एक्चुअली क्या आ जाता है, वहां पे नल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एरे को समझते हैं। कैर स्टार पीटीआर लिखा, एक बॉक्स बन गया at some address 3000। when we execute the second statement, this is how an array gets created। Vivek was asking this question।
भाई 3000 वाले एड्रेस पे एक ये क्या आ गया, सॉरी 3000 वाले एड्रेस पे नहीं, इस नीचे वाले एरे का एड्रेस क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस 6000, so this 6000 gets stored into the box shown above, उसमें ऊपर वाले बॉक्स में आ जाएगा. then when you execute this string copy, तो क्या होगा, पॉइंटर जहां पे भी है उस जगह पे क्या रख दो, बाय. तो पॉइंटर कहां था, 6000 पे, तो वी हैव स्टोर्ड बाय इज अ स्ट्रिंग and we do have a string terminator as well. strings are terminated with \0, null character होता है strings. उसके बाद देखिए क्या किया, using this pointer ptr की जो 0th लोकेशन है, array always start with index 0. at the 0th index what I have tried to do is I have tried to store letter u. अगर मैं ये करूंगा तो देखना जैसे ये लाल एरो नीचे आएगा क्या होगा, जैसे ही लाल एरो नीचे आएगा b की जगह वहां पे u आएगा, इसे कहते हैं ओवरराइट करना. ये देखो मैं आपको एनिमेशन चला के दिखा रहा हूँ. we have y and when we store u, b changes to u, and when we execute delete ptr, what will happen? The moment you execute this delete square brackets ptr, it deallocates the array pointed to by ptr. ptr तो अभी भी है मगर उसका एड्रेस जो उसके अंदर था वो क्वेश्चन मार्क्स में बदल गया, इसको अब मालूम नहीं है कि इसे कहाँ पॉइंट करना है. ठीक है, and when we set ptr to null, it becomes null. Array already exists, array still exists in the main memory, but where it exists I don't know. So this is how your system works. I hope this thing is clear to all. I hope I am clear on this. So my Yes, sir. motive was to teach you dynamic memory allocation, and I have taught you dynamic memory allocation by comparing the facility available in C and that available in C++. दोनों ही चीजें मैंने आपके लिए कंपेयर कर दी हैं ताकि आपको पूरी नॉलेज हो इस टॉपिक की. आधी नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती है दुनिया में. So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.